Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, I'm going to discuss step by step complete process to become a nurse in Germany. I have got a many queries in my Facebook, Instagram, even in the WhatsApp. I have responded them individually, and I thought why not I make a video, and it may be useful for the who really want to come to Germany, who are really dreaming of becoming a nurse in Germany. So I have already made the list of the requirements in my bill. So I'm going to discuss one by one. So stay tuned. Okay. First thing, what you need is your nursing should be completed, and you have to register in your state. Okay, from wherever you are doing nursing course or nursing college. So from that you have to achieve a degree or the register license to work as a nurse. That's all, no need of experience and all. You have to get a nursing registration certificate from your current state where you are passed out as a nurse. Okay, then the second thing is, after achieving your nursing registration, and you have to go through the German language course. German language course is very important, because one of the girl asked me why not I can prepare the interview myself and give. That is impossible. Okay, that is really impossible. That will not happen in any chance. Okay, first then after nursing registration you have to do German language course, and the minimum is B1 and maximum you can go to maximum is C1 C2, but that is not required. B2 it is mandatory. Okay, if you are ready to know about the complete process to become a nurse in Germany, then stay tuned till the end. उतना लंबा भी नहीं है, स्टेप बाय स्टेप में वीडियो दिखा रही हूँ आप सभी लोगों को. मैंने पहले से मेरा स्टेप्स लिख लिया हूँ यहाँ पे. तो आई एम गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन. What are the requirements, what is the steps, first, second, third, fourth, until you arrive here. So after completion your German language course, you will have to write one exam. Exam like it can be either TEL, Goethe, oder बीच में German language आ रहा है, so sorry. हाँ, TEL, Goethe, or what is that? TEL, Goethe, or the OST. In my case, I have wrote my TELC exam. After giving TELC exam, you will receive a certificate from the institute or the board itself in your mail. After that only you can proceed with your further steps. Okay, तो वो सर्टिफिकेट चाहिए ऐसे नहीं है कि ऐसे ही प्रिपेयर करके दूंगी, वो कोर्स करने के बाद सर्टिफिकेट दिला देंगे. ये किसी का भी हाथ में नहीं है सर्टिफिकेट दिलाने के लिए, एजेंट के हाथ में भी नहीं है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज अपना ही हाथ में है. लैंग्वेज कंप्लीट करो, सर्टिफिकेट अचीव करो, उसके बाद प्रोसेस भी चला सकते हो. यहाँ तक का स्टेप्स अपना हाथ में. एजेंट पकड़ लोगे भी, एजेंट हेल्प करेंगे, मगर सर्टिफिकेट के लिए इट इज़ इन योर हैंड. ओके, वर्क हार्ड करना है, लैंग्वेज में फोकस करना है पूरा, उसके बाद ही सर्टिफिकेट मिलेगा. तो उसके बाद व्हाट यू कैन डू इज़, अगर आप लोगों ने जर्मन लैंग्वेज अलग से करके सर्टिफिकेट निकाले हो तो प्रॉपर एंड वाइज सिलेक्शन ऑफ योर एजेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अभी तो बाज़ार में बहुत ज़्यादा फ्रॉड स्कैम चलता रहता है ना. तो कोई भी फ्रॉड स्कैम में ना फंसे, यही मैं चाहती हूँ. मेरा काफ़ी ज़्यादा जूनियर सीनियर फ्रेंड्स जो भी आना चाहते हैं, लाइक इसमें ना फंसे किसी का बेटा बेटी, तो ये फ्रॉड स्कैम के जाल में ना फंसे, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ. तो मेरा तो कंप्लीट, मैंने ऐसे एजेंसी पकड़ लिया था, एकदम ट्रांसपेरेंट जेन्युइन था, तो मेरा कंप्लीट पैकेज उन्हीं के पास था. तो वाइज सिलेक्शन ऑफ एजेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका पूरा उसके जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट निकलने के बाद पूरा आपका काम कुछ भी नहीं होता है, आपका काम ख़त्म. सर्टिफिकेट आने के बाद आपको सिर्फ जो एजेंट पूछेगा डॉक्यूमेंट वो आपको देना है, क्योंकि फर्दर प्रोसेस पूरा आपका एजेंट्स कराता है. यहाँ आने तक का इंटरव्यू से लेकर सिलेक्शन और फ्लाइट टिकट्स एवरीथिंग. ठीक है, तो वाइजली एंड प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ एजेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप कोई भी चाहते हो एजेंसी का लिस्ट, तो प्रॉपर एजेंट कौन सा है, कौन सा जेन्युइन ट्रांसपेरेंट है, तो आई हैव अ लिस्ट ऑफ एजेंसी. दे आर वेरी जेन्युइन एंड वर्किंग वेरी नाइसली, ब्रिंगिंग सो मेनी स्टूडेंट्स, सो मेनी नर्सेस फ्रॉम मेनी प्लेसेस like India, Nepal and all. So I can suggest you all the proper agency also in my next video. Then the documents required for the process is, after giving exam you will achieve a
डिग्री लैंग्वेज सर्टिफिकेट, देन बाकी सर्टिफिकेट बाकी डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास होगा ही होगा। नर्सिंग डिग्री का पूरा और एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, नहीं है तो नहीं, मगर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, लैंग्वेज सर्टिफिकेट चाहिए और बचा हुआ सब डिग्री फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर जीएनएम किया है तो थर्ड ईयर तक, और बीएससी किया है तो फोर्थ ईयर तक का पूरा सर्टिफिकेट, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट, सब भी जो भी अपना सर्टिफिकेट है वो सब चाहिए होता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आफ्टर कमिंग आउट फ्रॉम द कॉलेज यू हैव टू आस्क द ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट के बिना प्रोसेस नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होता है ताकि आपको डेफिसिट बिसाइड बाद में बनाकर यहाँ वहाँ का नर्सिंग डिग्री और यहाँ का कंपैरिजन करके हमारा कौन से एरिया में वी आर लैकिंग इनके लिए, तो डेफिसिट बिसाइड बनाने के लिए ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होता है। और बाकी अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स एजेंट मांग लेती है, यही सारा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। आफ्टर दैट गिविंग द डॉक्यूमेंट्स एवरीथिंग, अच्छा वाला CV होना है आपका इंग्लिश लैंग्वेज में, और वो एजेंट आपको सब ट्रांसलेशन ये सब आपको बजट सब बताकर दे देंगे जर्मन लैंग्वेज में, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, इंटरव्यू के लिए आपका एजेंट ही बता देंगे, एजेंट ही स्लॉट ढूंढ के कौन सा एम्प्लॉयर के पास आपका वैकेंसी है, कहाँ पे, कौन सा जगह में, क्लिनिकल सेंटर में, कौन सा हॉस्पिटल में, कहाँ पे, तो एजेंट आपको ये दिन में ये इंटरव्यू है, आपको इंटरव्यू देना है बोलती है, और इंटरव्यू के लिए आपको प्रिपेयर होना है। इंटरव्यू में सबसे बेस्ट टिप्स है कॉन्फिडेंट एंड कोई भी आपने जर्मन लैंग्वेज में वो पढ़ कर रखा है वो कॉन्फिडेंटली देना है, बस उतना ज़्यादा नहीं पूछते हैं, उतना कन्फ्यूजिंग नहीं होता है, जिस फर्स्टेलन ये सब होता है से मतलब इंट्रोडक्शन आपका और क्यों आना चाहते हो ये सब क्वेश्चन होता है। और बाद में आप कोई भी इंटरव्यू के बारे में प्रिपेयर करना चाहते हो तो आई कैन मेक अ वीडियो इन द नेक्स्ट वीडियो कि आज के लिए सिर्फ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या क्या होता है। सो आफ्टर गिविंग इंटरव्यू आपका यहाँ से एम्प्लॉयर वो भेज देते हैं क्या, फॉर द प्रोसेस प्री अप्रूवल वीज़ा के लिए यहाँ के एम्प्लॉयर पूरा डॉक्यूमेंट्स आपके एजेंट को भेज देते हैं, ठीक है। और एजेंट आपको इन्फॉर्म कर देंगे ये आया हुआ है, प्री अप्रूवल आया हुआ है, आपको वीज़ा अप्लाई करना होता है तो वीज़ा अप्लाई करा देंगे। वीज़ा अप्लाई के लिए इंटरव्यू सिलेक्शन होने के बाद ही आपका वीज़ा अप्लाई होता है, ठीक है। सो आफ्टर दैट वीज़ा के लिए कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जो भी आपके पास है सब कुछ, और जो भी यहाँ का एम्प्लॉयर से आपको मिलता है डॉक्यूमेंट्स वो सब लेकर जाना होता है। और वो भी मेरे केस में पूरा एजेंट ने प्रॉपरली मुझे बिठा के 1 by 1 डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके 2 सेट्स बना दिया था, एक सेट्स फॉर माई सेल्फ, तो डबल सेट्स था, एक सेट्स मैंने यहाँ तक लेकर आया हूँ और एक सेट्स पूरा विथ माई वीज़ा विथ माई पासपोर्ट मैंने वीज़ा ऑफिस में वीज़ा के लिए जमा किया था। फिर आफ्टर द 15 days और 1 week मेरा तो 9 days में आ गया था मेरा वीज़ा। वो वीज़ा भी पासपोर्ट में आपने जो पासपोर्ट जमा किया है वो पासपोर्ट में अटैच होके मतलब प्रिंट होके वो पासपोर्ट आपको बैक आता है। वो आने के बाद यू कैन बुक योर फ्लाइट टिकट्स, इट्स अ फाइनल स्टेप्स। हाँ, तो फ्लाइट टिकट्स कभी कभी इधर से भी बुकिंग हो जाता है, नहीं तो मेरा डायरेक्ट एम्प्लॉयर के साथ था तो मुझे खुद बुक करने के लिए बोला था, मैंने खुद बुक करके मैं आई थी। और उन लोगों को डेट देना होता है, ये दिन में मैं आ रही हूँ, इस टाइम में मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ, तो आपका यहाँ पे रिसीव करने के लिए एम्प्लॉयर हाजिर होते हैं एयरपोर्ट में। जैसे कि मेरे पास ऐसे ही हुआ था, वो मेरा रियल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ऐसे ही होगा मैक्सिमम केस में, ऐसा होता है। और वीज़ा एंड then this is how you can arrive in Germany. So at the end, if my journey inspire any one of nurse to achieve their Germany dream, I'll be very much happy. So stay tuned, stay connected, please don't forget to share, subscribe my channel India to Deutschland. So thank you, bye.